Hello friends, good evening to all of you. How are you? I hope you are doing very good, and definitely I'm also doing a fabulous job. So today we'll discuss the four things on which or about which taxpayer is generally worried about that. So one by one we'll discuss these four things. One is the tax planning, tax management, tax evasion, and tax avoidance. So these four words and these four terms we have like heard so many times, but generally we are not able to differentiate these all things. Like for example, मैं अगर बात करूँ टैक्स अवॉइडेंस का और टैक्स इवेजन का, तो जनरली टैक्स पे इन दो चीजों में बहुत ही लाइक कंफ्यूज हो जाता है. एंड देयर इज ओनली लाइक इन दिस टू देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दिस टू, बिकॉज इन दोनों को डिफरेंशिएट करना एंड डिपार्टमेंट को ये प्रूव करना कि इट वाज नॉट टैक्स इवेजन, इट वाज अ टैक्स अवॉइडेंस, ये बहुत डिफिकल्ट होता है. सो जनरली लाइक गुड प्रोफेशनल्स मेक इट डू, एंड सो we'll understand the meaning of these terms. First term is the tax planning. So what is tax planning? I'll say tax planning is when I properly plan my tax. There is like a, we can say, a legalized way to reduce the tax or save the tax. Legal way in the sense, what I do, for example, I am a salaried employee, I am a taxpayer. Sorry. So what I will do, my salary is, for example, 20 lakh. I have a salary. So out of that 1.5 lakh I'll get deduction ADC, ATD 25,000, then 80 NPS ka ADCCD, I'll get 50,000. Then what I'll do, I hope only I can save tax on 2.25 lakh. So when you go to a professional or chartered accountant, they'll give you some idea. For example, house property you can buy, and there is a house interest against house property you can create, and you can like 2 lakh on 2 lakh income you can save the tax also. So this is called tax planning, which you do during the year. For example, I am doing tax planning for financial year 21-22. So by the end of March 22, हम लोग कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि टैक्स पेयर को टैक्स सेव हो इन अ लीगल वे, एंड उसको कोई भी दिक्कत ना आए फ्रॉम द डिपार्टमेंट साइड. ठीक है. सो दिस इज टैक्स प्लानिंग. सेकंड, टैक्स मैनेजमेंट. टैक्स मैनेजमेंट आता है कि आप आपकी कंप्लायंस को, generally tax management is useful for the small business or the small like any kind of business purpose. जो बिजनेसमैन रहते हैं, फॉर एग्जांपल TDS कंप्लायंस होता है, SFT कंप्लायंस होता है, या फिर ITR कंप्लायंस होता है, या फिर जो डिपार्टमेंट को फॉर्म्स सबमिट करने होते हैं रूटीन बेसिस पे, डेली बेसिस पे. सो दोज आर थिंग्स, अगर एक प्रॉपर कंप्लायंस बिफोर ड्यू डेट और ऑन ड्यू डेट करते हैं, उसे बोलते हैं प्रॉपर टैक्स मैनेजमेंट. मीन्स आप चीजों को मैनेज करते हो to avoid the late fees or interest or any kind of penalties. So this is called tax management. Third thing becomes tax avoidance. Tax avoidance is, because we all know, जो लॉ ड्राफ्ट करते हैं, लॉ मेकर वी कॉल देम. सो लॉ मेकर भी एक बंदा होता है, लाइक पर्सन होता है. सो द पर्सन, एंड वी नो द ह्यूमंस मेड मिस्टेक. सो जो लॉ मेकर होता है वो जनरली कुछ न कुछ लूप होल वो रखना नहीं चाहता, बट रह जाते हैं. And professionals क्या करते हैं कि there are several of teams who are generally working on to bring those loopholes. So उन loopholes को निकालने के लिए बहुत सारी टीमें काम करती रहती हैं. So उन loopholes का फायदा उठाना is called tax avoidance. It means आप टैक्स को अवॉइड करते हो by like interpreting those loopholes in the law which is created by lawmaker. And later on क्या होता है, हम टैक्स अवॉइडेंस का बेनिफिट बहुत ही कम टाइम के लिए ले पाते हैं. बिकॉज टैक्स अवॉइडेंस, फॉर एग्जांपल फाइनेंस एक्ट 21 में जो FA 21 आया, उसमें कुछ लूपहोल्स है. तो अभी क्या करेंगे, टैक्स पेयर्स जो है इस ड्यूरिंग द ईयर कुछ उसका बेनिफिट ले लेंगे, एंड देन जब डिपार्टमेंट के पास जाता है वो रिटर्न या वो जो भी कुछ डॉक्यूमेंट आता है, डिपार्टमेंट गेट टू नो कि भाई ये हुआ है ड्यूरिंग द ईयर. सो व्हाट दे विल डू, दे विल मेक द अमेंडमेंट एंड दे स्टॉप दैट दोज लूपहोल, एंड कुछ उसमें अमेंडमेंट कर देंगे. अमेंडमेंट में भी रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, वो डिपेंड करता है कैसा आप किस लाइक जो अवॉइडेंस है आपका किस हद तक है उसके बेस पे. देन द फोर्थ थिंग कम्स टैक्स इवेजन. दिस इज द मेन लाइक बहुत ही, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आपके पाप का घड़ा बढ़ जाता है. दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन. जब आप टैक्स इवेड करते हो, इवेड मीन चोरी करना. टैक्स इवेजन इज लाइक अनड्यू एडवांटेज यू आर टेकिंग ऑफ लाइक जो भी गवर्नमेंट के जो मतलब पॉलिसीज रहती है उनका अनड्यू एडवांटेज लेते हो
एंड टैक्स चोरी करते हो इन एनी अदर वे व्हिच इज नॉट लीगल। सो इन टैक्स इवेजन में आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, आपको पेनल्टीज, हैवी पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती है, इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, एंड इन द सम केसेस यू मे हैव टू गो फॉर प्रोसिक्यूशन आल्सो, लाइक जेल भी जाना पड़ सकता है आपको। सो ये चार चीजें हैं, टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। सो जनरली आप टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं, एंड सेकंड थिंग टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। सो आप प्रॉपरली आपका टैक्स प्लान करें ड्यूरिंग द ईयर, मीट योर प्रोफेशनल एंड मेक लाइक जो भी बेस्ट प्लानिंग हो पाती है आप लोग बैठ के अंडरस्टैंडिंग कीजिए to evade, like to avoid the tax evasion and to avoid the further like difficulty जो आप फेस करते हैं, because tax evasion आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बेनिफिट देता है, बट एक लॉन्ग टर्म इट मे कॉज यू वेरी लाइक बिग हार्म एंड वेरी हैवी लॉसेस टू यू, बिकॉज टैक्स इवेजन के केस में आपके ऊपर रेट भी हो सकता है, सर्च सीजर भी हो सकता है। so those are things, to avoid those all things always try to plan your tax in a very good way and meet your professional today only to get a good better planning. Thanks a lot. Thank you.